नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक चौहान और आप सब लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा वन ऑफ माय फेवरेट, मोस्ट फेवरेट स्टार्स, एक्टर्स, सुपरस्टार्स शाहरुख खान के बारे में। दोस्तों, शाहरुख खान का डेब्यू 1992 में हुआ फिल्मों में। बिफोर दैट ही वाज अ ह्यूज टेलीविजन स्टार and he exploded onto the screen with a film called Deewana. Deewana became a huge hit and Shah Rukh Khan, the audiences hadn't stopped loving him since then. दीवाना में उनकी एक्टिंग को, उनके पर्सनालिटी को, उनके स्टाइलाइज्ड एक्टिंग को, उनके मैनरिज्म्स को काफी अप्रिशिएट किया गया था and he played a very conventional hero in that film and that film became a big hit. Then he followed it up with Dil Ashna Hai, Chamatkar, and Raju Ban Gaya Gentleman. Raju Ban Gaya Gentleman is another landmark film. People still remember that film and talk immensely about it. And that gave us a great pair of Shah Rukh Khan and Juhi Chawla. But I think the turning point in Shah Rukh's career came with a film called Bazigar. Or Bazigar, if I'm not mistaken, it released on 13th November 1993. Or Bazigar mein Shah Rukh Khan changed the rules of the game, I think, of Bollywood. And मुझे याद है, I saw that film Delhi में Savitri Cinema में, and I was a school going student then, and there is a scene in that film in which he threw off Shilpa Shetty off the building, and the audiences were actually enjoying it, and going with the anti-hero was something new. I mean, that I was witnessing, the audiences were witnessing, and Shah Rukh Khan followed that Bazigar with 1 month later, just exactly 1 month later, उनकी एक और फिल्म आती है डर, दिसंबर में। जी हाँ, 93 में 13 नवंबर को आती है आपको बाजीगर, और आई थिंक 23rd or 24th दिसंबर को आती है डर, इन विच अगेन ही प्लेज अ नेगेटिव रोल, एंड अगेन सनी देओल बीइंग अ बिगर स्टार देन हिम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ऑडियंसेस वर रूटिंग फॉर शाहरुख खान इन दैट फिल्म। एंड ये कैसे पॉसिबल हो रहा था? बिकॉज आई थिंक हिज परफॉर्मेंसेज वर बीइंग सो लाइक्ड बाय द ऑडियंसेस एंड हिज होल पर्सनैलिटी, और इतना लोगों को मजा आ रहा था उनके परफॉर्मेंसेस में कि दे वर रूटिंग फॉर द एंटी हीरो। देन अगेन इन February ही फॉलोड इट अप विद अनदर ब्यूटीफुल फिल्म कॉल्ड कभी हाँ कभी ना, मेरी वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट SRK की फिल्म्स हैं। एंड आई थिंक इवन इन दैट फिल्म हिज कैरेक्टर वाज स्लाइटली ग्रे, झूठ बोलता था, फेल होता था, जिस लड़की को प्यार करता था उसके बारे में अफवाहें फैलाता था। सो he played all these dark grey characters, and then again in April he came up with another film called Anjam. And Anjam, he was completely a negative character. I think probably his most sinister act till date. And वो film खास उतनी नहीं चली as compared to all these three films. Dar and Bazigar were super duper hits. Kabhi Haan Kabhi Na did decently well, but Anjam didn't make a mark at the box office. But what was most endearing was that Shah Rukh Khan captured people's imagination. शाहरुख खान हमारे दिलों में बस गए थे with his negative portrayals, and people were really enjoying it. Then came 1995, where 2 films in 1 year changed the whole perception of Shahrukh Khan. एक फिल्म थी करण अर्जुन, उसके बाद फिर आई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. So from playing negative, he went completely positive in Karan Arjun, and he played the quintessential Bollywood hero in Dilwale Dulhaniya Le Jayenge. And Shah Rukh Khan rightly pointed out कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे was his launch, and after that Shah Rukh Khan hasn't really looked back ever. उसके बाद as time lapsed, in 97 he had big hits like Yes Boss, दिल तो पागल है, and then subsequently 98 में कुछ कुछ होता है आती है, 2000 में मोहब्बतें आती हैं, 2001 में कभी खुशी कभी गम आती है, and this line of hits keep on coming, and Shah Rukh Khan is revered as the most romantic, this huge larger than life romantic hero that Bollywood got. फिर 2006 में फिर से थोड़ा सा एक्शन इमेज चेंज, 2004 में सॉरी मैं हूं ना आती है, इन विच ही अटेम्प्ट्स अ मसाला जॉनरा, और वो फराह खान के साथ उनका पहला कोलैबोरेशन होता है, दैट फिल्म डज आल्सो वेरी वेल. 2006 में डॉन आती है, दैट फिल्म डज वेरी वेल. देन सब्सिक्वेंटली बीच में 2002 में संजय लीला बंसाली की देवदास आती है. इन हिज परफॉर्मेंसेज आर बीइंग लव्ड. सो बेसिकली शाहरुख खान वाज डिलीवरिंग हिट्स आफ्टर हिट्स एंड डूइंग रियली वेल. फिर 2007 में उनकी फराह खान के साथ दूसरी कोलैबोरेशन होती है, ओम शांति ओम, एंड ओम शांति ओम इज अ टेरिफिक ब्लॉकबस्टर हिट.
सब्सिक्वेंटली देन फिल्में आती रहती हैं, अच्छी फिल्में आती हैं. 2010 में माय नेम इज खान, वेर अगेन ही इज अप्रिशिएटेड फॉर हिज परफॉर्मेंसेस. 2011 में उनकी अपनी होम प्रोडक्शन आती है RA1. 2012 में दैट ह्यूज लास्ट फिल्म ऑफ विद यश चोपड़ा, जब तक है जान. 2013 में उनकी आती है प्रॉब्ली हिज आई थिंक हिज बिगेस्ट हिट टिल डेट इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस वैल्यू is Chennai Express. Chennai Express was a huge hit. His first collaboration with Rohit Shetty. Then subsequently उसके बाद में दिलवाले रोहित शेट्टी के साथ वो करते हैं. Then Fan and last year he had Zero. The point I'm trying to make now is that Shah Rukh Khan is a huge star. No questions asked. He still is a very big star. लेकिन शाहरुख खान की जो स्टारडम है वो उनकी पर्सनालिटी से स्टेम करती है. आई थिंक वी इंजॉय शाहरुख खान एज अ पर्सन एज मच एज वी इंजॉय हिज परफॉर्मेंसेज. और उनकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही इंडियरिंग पर्सनालिटी है और उनकी स्टारडम उसी से स्टेम करती है. एंड आई थिंक व्हाट ही एक्चुअली डिड was उन्होंने स्टारडम को बहुत एक्सेसिबल बना दिया. एंड आई थिंक ही सेड इट इन अ वेरी मेनी इंटरव्यूज कि एक दिल्ली का नॉर्मल सा लड़का जाके बॉम्बे में इतना बड़ा स्टार बन जाता है. एंड आई थिंक द मिडिल क्लास आफ्टर शाहरुख बिकेम अ ह्यूज स्टार, आई थिंक दे फाउंड इट वेरी endearing टू सी दैट वन ऑफ देयर ओन कुड एक्चुअली गो देयर एंड बिकम अ स्टार. एंड दो एसोसिएशन है वो उससे काफी उनसे बढ़ जाता है. तो आई थिंक हिज पर्सनैलिटी, his engaging, charming, witty personality and persona is what really drives his stardom. और इसी से इतना उनको ताकत मिलती है. एंड ऑफ कोर्स ही इज अ ग्रेट परफॉर्मर, ही इज अ ग्रेट एंटरटेनर. शाहरुख खान कैमरा जब ऑन हो जाता है तो आई थिंक ही कैन एंटरटेन एनी काइंड्स ऑफ क्राउड. आई मीन पुट हिम ऑन अ स्टेज, पुट हिम ऑन अ सिनेमा स्क्रीन, एंड शाहरुख खान इज एन एंटरटेनर. आई मीन आप उनके स्टेज परफॉर्मेंसेस को देखेंगे तो उनका जो शार्प विट है, ह्यूमर है, जैसा वो अच्छा बोलते हैं, आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स इट मोर एंगेजिंग फॉर द ऑडियंस टू कनेक्ट with Shah Rukh Khan at many levels. People connect with Shah Rukh Khan also. So I think that whole image, that persona of Shah Rukh Khan became real, and he became this huge phenomenon which people really connected to and people really loved. And he became such a huge star. एक बात जो अभी बोला जाता है करंट फेस के बारे में शाहरुख खान के, कि उनकी फिल्में नहीं चल रही हैं, उनकी फिल्मों का कलेक्शंस नहीं हो पा रहा है बाकी दोनों खान्स के हिसाब से, वेयर सलमान एंड आमिर आर कॉन्स्टेंटली हिटिंग द 300 करोड़ मार्क. शाहरुख खान इज नॉट एबल टू एंटर द 300 करोड़ मार्क. और शाहरुख खान की फिल्में उस लेवल पे बिजनेस नहीं कर पा रही हैं. उनकी लास्ट रिलीज जीरो 100 करोड़ भी पार नहीं कर पाई. सो देयर पीपल पुट अ क्वेश्चन मार्क ऑन हिज स्टारडम. But let me tell you very honestly, I really don't think that there is any issue with Shah Rukh Khan's stardom. His stardom is very much intact. शाहरुख खान के स्टारडम के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से. मुझे लग रहा है कि शाहरुख खान नीश फिल्में कर रहे हैं, वो अपने स्टारडम को कट डाउन कर रहे हैं, वो ज्यादा एक्टिंग की तरफ जा रहे हैं. देखिए शाहरुख खान की स्टारडम, पब्लिक जो है, जो उनके फैंस हैं और जो पब्लिक है, वो शाहरुख खान को एक्सपेक्ट करती है हर एक फिल्म में. दे वॉन्ट टू सी शाहरुख खान द स्टार, द मेगा स्टार, द सुपरस्टार, जो एंटरटेन करता है, जो रोमांस करता है, जो लोगों को एंगेज करता है. और जब शाहरुख खान वो स्टार माइंड यू दैट स्टार ऑडियंसेस के सामने परोसते हैं, ऑडियंसेस कूद पड़ती हैं उन पिक्चरों पे. दिलवाले आप देख लीजिए, आई थिंक दिलवाले वाज अ कंप्लीटली अ स्टारडम. आई मीन शाहरुख खान फुल फ्लो में थे अपने स्टारडम के उस पिक्चर में. और उस फिल्म की डिस्पाइट बीइंग कंपटीशन फ्रॉम अ बेटर फिल्म लाइक बाजीराव मस्तानी, उस फिल्म ने लगभग 150 करोड़ का बिजनेस किया इंडिया में. इट ओपन टू राउंड अबाउट 24-25 करोड़. सो फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ स्टार, शाहरुख डिलीवर्ड, नो क्वेश्चंस आस्क्ड. देन अगेन रईस, आई थिंक रईस पूरा नहीं था कंप्लीट स्टारडम शाहरुख खान का. आई थिंक इट शोकेस्ड वन साइड ऑफ इट वाज मोर ऑन द परफॉर्मेंस साइड, बट स्टिल डिस्पाइट बीइंग कंपटीशन इट ओपन्ड टेरिफिकली. फैन एक कंप्लीट निश फिल्म थी, सोलो रिलीज होती है, उसको शाहरुख खान 18-19 करोड़ के लेवल पे ओपनिंग दिलाते हैं. एंड आई थिंक दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट दैट हिज स्टारडम इज सो मच इंटैक्ट. देन अगेन जीरो से बहुत बातें हो रही थी. टू बी ऑनेस्ट, व्हेन आई फर्स्ट गॉट टू नो अबाउट जीरो दैट शाहरुख खान इज प्लेइंग अ ड्वार्फ इन इट, I wasn't too excited from a box office point of view. Yes, the film could have been huge and great, etc., but उसमें हमें शाहरुख नहीं मिलेगा. जो स्टार आप खोज रहे हैं वो आपको जीरो में नहीं मिलेगा, आपको बउआ सिंह मिलेगा.
So there was a difference. Shah Rukh Khan was playing a character. He was subverting his stardom. और उसमें आपको हमेशा अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. Like similarly, Salman got a very bad result with Tubelight. कि अगर फिल्म अच्छी नहीं बने और आप अपने स्टारडम को सबवर्ट कर देते हैं तो रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते हैं. लेकिन फिर भी आपके साथ में अनुष्का शर्मा थी, हु इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स इन इंडिया राइट नाउ. शी वॉज प्लेइंग एक मतलब शी वॉज फिजिकली चैलेंज पर्सन, उसमें वो प्ले कर रही थी. और शाहरुख खान एक हॉरिजॉन्टली चैलेंज पर्सन प्ले कर रहे थे. उसके बाद भी पिक्चर 20 करोड़ के आसपास खुलती है, 54-55 करोड़ का वीकेंड करता है. तो देर इज नो क्वेश्चन विद द स्टारडम. He just needs the right film which showcases Shahrukh Khan the star. और जिस दिन वो परोस देंगे लोगों के सामने, I think the audiences will come out in huge numbers to watch it. And personally, I don't think that there is anything wrong with SRK the star, the superstar. तो कोई issues, कोई question mark उनके stardom पे मेरे हिसाब से कहीं पे नहीं है. Friends, I would like to conclude by saying that Shah Rukh Khan is probably the biggest stars that Bollywood has probably ever seen. और अगर बॉलीवुड का इतिहास लिखा जाएगा तो शाहरुख खान के बारे में काफ़ी कुछ, he will occupy a huge space in that. And आने वाले समय में अभी मैंने सुना है, there are rumors in the market and in the trade that Shah Rukh Khan may be collaborating with Rajkumar Hirani. And personally, I think कि राजकुमार हिरानी से अच्छा उनको डायरेक्टर उनके स्टारडम को प्लस कंटेंट को मतलब मैरी करके नहीं मिल पाएगा. एंड आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट फिल्म. एंड आई विश दैट शाहरुख एक्चुअली वर्क्स विद राजू हिरानी. एंड आई थिंक जब राजू हिरानी पहली फिल्म बना रहे थे तो ऐसा भी रूमर आया था कि मुन्ना भाई उन्होंने शाहरुख को सबसे पहले अप्रोच किया था. बट दैट कुडंट मटीरियलाइज. बट आई रियली विश दैट दीज टू कोलैबोरेट. एंड आई थिंक दैट बाई प्रोडक्ट विल बी एन एक्सीलेंट फिल्म जिसकी कोई लिमिट नहीं होगी. बिकॉज Shahrukh Khan the star meets Raju Hirani the director will be a huge film. And last but not the least, I think there is nothing wrong with SRK's stardom. He's still huge. His following is immense. He just needs the right product. And he just needs a film which balances his stardom. It does justice to SRK's stardom and marries content with it the way he used to do in the early 2000s or even the late 2000s or even the 90s, early 90s. And I think he doesn't need to cut down or subvert his stardom and try and promote the actor Shah Rukh. I think he needs to find that balance. And I think the film is very near. And I think once that film hits, I can guarantee you it will explode on the screen. Thank you very much for watching. And please do subscribe to my channel. And I keep making videos for you. Thank you.